یہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے، آخر فلاں مرشد بتاتے ہیں 5 ٹائم نماز، 5 ٹائم وظیفہ، جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ کہہ دے گا ہندوستان کے اندر سود جائز، اللہ ہے، ایک رسول ہے، قرآن، ایک شریعت ہے، 4 چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر 4 چیز میں ایک چیز بھی کم ہے تو اس کا ٹھکانے کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ نماز اللہ کا قانون، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کیا لائے؟ ہم لوگ کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی، پورا پڑھ ڈالا، اے اللہ تعالیٰ یہ آپ کی پاک نماز۔ ہم لوگ کیا دیں گے؟ فرقے کے ساتھ نہیں ہے، فرقہ سے کوئی مقصد حل ہونے والا نہیں ہے، عمل سے کام کرے۔ عمل نہیں ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے بھیجا کہ دنیا سے کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے، نہ کہ اچھا کمائی کر کے لاتا ہے، یہ یہی رہ جائے گا، روپیہ پیسہ دھن دولت سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ ہم کو پورا ایک کتنا کپڑا لگتا ہے نا اسی میں لپیٹ کے لے جا کے گاڑ دے گا اور کچھ نہیں دے گا، بغلوں میں کچھ نہیں رکھے گا۔ لڑکا کہے جلدی ان کے نکالو بھگاؤ، میرے اعمال میرے ساتھ جائیں گے، جو میرا اعمال ہوگا وہی جائے گا، اچھے اعمال کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے نماز نہیں ہے، قرآن نہیں، وظیفہ نہیں ہے، فرقے کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی بینک میں پیسہ رکھ دو، نہیں تو کیسے لڑکی کی شادی ہوگی، لڑکے کی شادی ہوگی۔ جو اچھا پیسہ ہے اس کو بھی لے جا کے خراب کر دیا، یعنی سود میں ڈال دیا۔ آج ہم اپنے لڑکی کے نام، لڑکے کے نام فکس کر دیتے ہیں، فکس کر دیا، چلو بھائی اس کے نام سے فکس کر دے، سود میں ڈال دیا۔ سود وہیں سے شروع ہو گیا، اس کا زندگی اس کا سود میں کٹ گیا۔ اگر اس سے شادی بھی کر دیا ساری زندگی اسی میں اس کا کٹ جائے گا۔ اس کی ذمہ کس کی ہے؟ اس کے ماں باپ کی۔ گناہ میں کس نے ڈالا؟ ماں باپ نے ڈالا۔ آج آپ کا مرشد بار بار منع کرتا ہے سود سے سمجھوتا کرنے کا نہیں، اللہ پر بھروسہ کریے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے بندے کو 1 مہینہ کا فرصت مانگے تھے، کہا کہ نہیں ہے سلیمان، یہ تیرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہاں تک کہ 1 ہفتہ 1 دن 1 ٹائم پر آ جاتے ہیں، کہا کہ نہیں مانو گے تو کھلا دو، کھلا دو۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام پورا کھانا جو بھی بنوایا، کئی میل میں دسترخوان لگوایا۔ کتنا لگائیں گے؟ دنیا کا کونا کہاں سے ہے؟ سارے کے منہ میں اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ کہاں کہ ہے سلیمان؟ اس کے بعد جو ہے پورا کھانا بن کے تیار ہو گیا، اس کے بعد ایک مچھلی آتی ہے، ایک مچھلی آتی ہے، کہا کہ اے سلیمان ہم کو کھانا کھلا دے، کہا کہ 2 منٹ 5 منٹ رک جا، کہا کہ اے سلیمان جب مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے اللہ کھلا دیتا ہے، ٹائم نہیں دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں بھائی اس کو کھلا دو، جتنا کھانا بنائے تھے سارے کھانے کو مچھلی کھا جاتی ہے۔ اب پریشان ہے سلیمان علیہ السلام، کہتے ہیں مچھلی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ اے سلیمان ابھی یہ میرا خالی ہے، ابھی یہ میرا خالی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ ہم کو 3 لقمہ دن بھر میں کھلاتا ہے، یہ تو بھی میرا خالی۔ خط سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اے اللہ بے شک رزق آپ کا ہے، یہ ہمیشہ خیال کریں گے آپ۔ اگر میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے بیوی بال بچوں کو کھلاتا ہوں تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ رزق آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دیکھ لیجئے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے مرشد تلاش کے لیے حقانی درود شریف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ خود ہی مرید کرتے تھے، خود اپنا کام کرتے تھے، رات کو زلف مبارک باندھ کے حق حق پڑھتے تھے دہن میں،
कुछ ना मिला, खाली। जिस वक्त जाके मुर्शिद सूफी जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह से हाथ मिलाया, कितना बड़ा मर्तबा दे के मुर्शिद ने भेज दिया, जो कि करमनाशा की रवानी को बदल दिया। ये वही वजीफा पढ़ा था, कुछ नहीं किया। मौलाना थे, आलिम थे, उतना बड़ा आलिम नहीं, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन मुर्शिद से हाथ मिलाया, कितना बड़ा मर्तबा दिया। सूरह फातिहा, सूरह इखलास, फलक और नास, यही पढ़ना मौलाना, और कुछ नहीं। और कुछ हजरत कहे कुछ नहीं, इतना ही तुम्हारे जिम्मा काम है, लगा दिया। आपको मुर्शिद ने क्या दिया? सूरह फातिहा, सूरह इखलास, फलक और नास, आगे पीछे हक्कानी दरूद शरीफ लगा दिया। ये मुर्शिद का दरूद शरीफ है। लोग कहते हैं तब तो कोई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे भाई, अंगुली लगाने वाले का कोई इलाज नहीं। मुर्शिद कहता है उससे दूर रहो, दूर रहो। कहा भाई तुम वही रहो, हम जहाँ हैं हम हक है। हकानी अंजुमन हक है, जिसने गांस से जान दिलवाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इससे बड़ा क्या करामात चाहिए? क्या चाहिए? अब तो वही बाकी है कि जीजो बकुलिया और मर्जो बकुलिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, हक्कानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। कमा सल्लैता व बारकता व रहमता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं कहीं, देख ले कलमा मुर्शिद ने कैसा लगाया। जाते हैं, उसके बाद एक देहाती मिला, गैर मुस्लिम जालिम मिला। कहा कि भाई आप कौन है? आप कौन है? कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन है, न दाढ़ी है, न नमाज है, न कुरान है, न वजीफा है, क्या सबूत बताएंगे आप? सबूत कुछ नहीं है मेरे पास, न नमाज, न कुरान, न दाढ़ी, न कुरान, कुछ नहीं है। देख लें, उनसे सवाल कर रहा है गैर मुस्लिम। कहा कि क्या सबूत है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? कहा कि जाओ उस दरख्त से बुलाओ, कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। जाके ठट्ठे मारता, हंसता है, सोच रहा है पेड़ों कहीं चली। अरे पेड़ नहीं, का चल रही, हुक्म हो के चाहिए। देख ले, नबी का हुक्म है वो भी तो। कहा कि चलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। एक बार हिला और दूसरी बार हिल करके उखड़ गया और यही कलमा पढ़ता हुआ चला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो देहाती भी कलमा पढ़ दिया, यानी ईमान ला दिया। जाके वो पेड़ बगल में खड़ा हो जाता है। कहा क्या हुजूर, क्या हुक्म है? कहा जाओ फिर वही खड़े हो जाओ। हुक्म मान लिया, पेड़ हुक्म मान लिया, लेकिन हम इंसान नहीं। हकानी दरूद से नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सलाम को मछली पेट में लेके जब जमीन के तह पर गई, जमीन के तह में नीचे जब जाती है तो वहां की कंकड़ियां यही कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कंकड़ी कलमा पढ़ने पर राजी, लेकिन हम इंसान राजी नहीं हैं। नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, वजीफा पढ़े, आप अपने मुर्शिद के हुक्म की ताबेदारी करें, हुक्म के मुर्शिद को माने। मुरीद के माने ही आते हैं बिकना, मुरीद के माने बिकना। आपकी बॉडी मुर्शिद के नाम, आप पूरी नमाज वजीफे के साथ रहें। देख लें, हम कहते हैं दुआ से क्या मिलेगा, दुआ में बहुत ताकत है मेरे भाई। दुआ करें, नमाज पढ़ के दुआ करें, मांगे अपने लिए मांगे, अपने बच्चों के लिए मांगे, रोजी मांगे, मांग के तो देखें। अल्लाह ताला कहता है बंदा तू मांग के देख, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नहीं, नमाज नहीं, कुरान नहीं। देख लीजिए, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, उधर से एक शराबी शराब पी करके और दोनों हाथ में लिए हुआ भी है।
शराबी के मुंह में शराब भी है, दोनों हाथ में बोतल भी है। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखता है तो क्या कह रहा है, अल्लाह ताला आज अगर मैं उमर की सजा से बच गया तो मैं शराब का पीना छोड़ दूंगा। दिल ही दिल में दुआ कर रहा है, मुंह में भी शराब और हाथ में भी शराब। अब उसके बाद जो है करीब पहुंच जाते, मर छुपा रहा है, चादर ओढ़े हुआ उसमें दबा रहा है, बेचारा परेशान है। उमर की सजा से सारे लोग डरते थे, अल्लाह ताला ने दिया भी था उनको। तो उसके बाद कहा कि जब करीब सड़ जाते हैं तो कहा कि क्या लिए हो भाई, क्या छुपा रहे हो? तो उसने क्या कहा कि मैं तो इसमें दूध लिया हूँ, इसमें दूध लिया हूँ। कहा कि जब दूध लिया तो क्यों छुपा रहे हो, उसको गिराओ। जब गिराता है तो उसमें से गरम गरम दूध गिर रहा था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला ये बात समझ में नहीं आती। कहा कि ऐ उमर, इसने मुझसे दुआ किया कि आज मैं उमर की सजा से बच जाऊंगा तो शराब का पीना छोड़ दूंगा, इसलिए मैंने इसके शराब को दूध में बदल दिया। ये दुआ की ताकत है। आज दुआ लोग नहीं करते हैं, मांगते नहीं है, नमाज पढ़ा और ऐसे ही चल दिया। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, दुआ से क्या मिलेगा? लोग कहते हैं अल्लाह माफ, क्या नहीं मिलेगा? मांग के देखो, मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। तेरी जैसी नियत होगी वैसा ही तेरा अमल होगा। इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमल का दौर मदार नियत है। खुलूस नियत के साथ इस पाक मजलिस में इंशाअल्लाह बैठेंगे, बरसहा बरस इबादत का सवाब लेके जाएंगे। हक्कानी दुरूद शरीफ। सय्यदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व ज़ुर्रिय्यतिही व सहाबिही इखलास, फलक और नास आगे पीछे। हक्कानी दुरूद शरीफ। सूरह फातिहा के बारे में सुन ले, देख ले आपका मुर्शिद क्या कर रहा है। और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह के वादा से किसका वादा सच्चा है? देख ले। सूरह फातिहा को अल्लाह ताला ने तख्ती पर लिख दिया, तख्ती भर जाती है, उसके मुट्ठी पर आमीन लिखा हुआ है। तख्ती ने सजदा किया, अल्लाह ताला ने सवाल किया है, तख्ती तू क्या चाहती है? कहा कि अल्लाह ताला सूरह फातिहा पढ़ने वाले को बख्श दे। कहा कि ऐ तख्ती तू सिर उठा, मैंने सूरह फातिहा पढ़ने वाले को बख्श दिया। क्या खराब कहा मुर्शिद ने? फिरका के साथ नहीं रखा मेरे भाई, कोई फिरका नहीं। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, वजीफा पढ़ो, यही आपका अल्लाह का हुक्म फरमान भी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस देहाती ने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है जन्नत में जाने का आसान रास्ता और आसान तरीका क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 5 टाइम नमाज और 5 टाइम कुरान। हम लोगों का वजीफा कुरान से है, इसलिए वजीफा बोल दिया जाता है। 5 टाइम नमाज पढ़ना और 5 टाइम कुरान पढ़ना। उस देहाती ने क्या कहा, न मैं इससे कम करूंगा न मैं इससे ज्यादा करूंगा। और कह के जाने लगा, नबूवत की अंगुली मुबारक उठ गई, देखो ये जन्नती जा रहा है। ऐलान कर दिया मेरे भाई, नमाज नहीं है तो सजा तो है। हर कोई को नमाज देना होगा वहाँ, चाहे किसी हाल में नमाज माफ नहीं है, चाहे टेढ़ होके चाहे सीधा होके। एक अल्लाह का बंदा था, अल्लाह ताला ने उसको 32 साल चरपाई पर चित लटा के रखा। 32 साल एक उम्र होता है, 32 साल चित लटा के रखा और वो उसकी उस हाल में नमाज कजा नहीं होती थी। उस हाल में उसकी नमाज कजा नहीं होती थी। इशारे से पढ़ लेता था, सोए सोए पढ़ लेता था। उसका हिलना डोलना तो मुश्किल था। उसके दिल में आया, ए अल्लाह ताला मुझे मूसा की जियारत करा दे। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और रास्ते को फेर दिया, वहाँ पहुँचा दिया। मुख्तसर में क्या देख रहे हैं कि बंदा जो है अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तस्बीह कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, उसके आंखें बंद हैं। आज हम लोग कहते हैं भाई मेरे ठेवना में दर्द बा, कमर में दर्द बा, कहाँ दर्द बा, कहाँ दर्द बा, हुआ तन 3 ठे कुर्सी रख दो, हुआ कुर्सी रख दो, मसनद रख दो, कहाँ रख दो? कुर्सी पर नमाज कैसन बा? नमाज कैसा है कुर्सी पे? आप सोच लेंगे, भगा लेंगे मसला, हम नहीं बोलेंगे। खूब
मजबूरी के तहत है, खूब आखिरी पोजीशन में तब कुर्सी है, नहीं तो मस्जिद में सूत के पढ़, वहाँ मस्जिद में 5 ठे कुर्सी लगावल बा, का हो तो उनकर पैर सीधा हो गए, उनकर कमर सीधा हो गई। अरे मस्जिद में सूत जा, सूत के पढ़ो ना, सूत जा लम्बा हो जाए, इसे नहीं जाके वहाँ कुर्सी दिखाओ तो मस्जिद में मेरे भाई। नहीं, आप पूरी आपको खूब मजबूरी है तब तो हो सकता है, खूब मजबूरी लाइफ पोजीशन तब होगा, नहीं होगा, इसी हाल में नहीं है। पैर फैलाने सीधा काबे की तरफ फैलाने, अल्लाह देख न रहा है। देख लीजिए उस बंदे ने, जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंच जाते हैं, बंदा तस्बीह कर रहा है, पहले कुछ भी पढ़ रहा है, कहा कि ए बंदा किस बात का शुक्रिया है, कहा कि ए बंदा अभी मेरी जबान सलामत है, जो मैं अल्लाह का नाम ले लेता हूँ, इससे बढ़ के क्या है। उसका जबान पर ही पूरा उसको एतमाद था। यहाँ हम लोग तनी सा ठेहुना में दर्द हो जाता तो नमाजे छूट जाता, तनी सा जुकाम होगी तो सर्दी होगी बस जो नमाज पर पहले पड़ जाना, खाए पर ना पड़ेला, वो तो एकदम दर चली ना। खाने का टाइम होगा तो उसमें 1 मिनट देरी नहीं होगा, और नमाज का टाइम मुअज्जिन अल्लाहु अकबर, अल्लाह बुला रहा है, लेकिन हम लोग कह नहीं, हम लोग इधर सीमान में जाएंगे। अब उसके बाद जो है वो बंदा कहा कि किस बात का शुक्रिया है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, कहा कि अभी मेरी जबान सलामत है, जो अल्लाह का नाम ले लेता हूँ। और उसके बाद कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, अरे बंदा कोई ख्वाहिश, कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की जियारत, कहा कि देख ले मैं ही मूसा हूँ। और कोई ख्वाहिश, कहा कि 1 गिलास पानी। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं 1 गिलास पानी लेने के लिए, तब से शेर बबर आया, फाड़ फूड़ के सर कहीं, पैर कहीं, हाथ कहीं फेंक दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो क्या देख रहे हैं कि सब अलग है। अल्लाह बात समझ में नहीं आती। कहा कि मूसा जिसको मैं 32 साल चरपाई पर चित लगा के रख सकता हूँ, क्या उसको 1 गिलास पानी नहीं दे सकता हूँ। देख लो जन्नत में टहल रहा है, कितना बड़ा मर्तबा है। नमाज तो पढ़ना ही है। आज हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी नमाज के लिए बहुत दूर होते जा रहे हैं मेरे भाई, बहुत दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल से इतना करीब हो गए हैं कि नमाज बहुत दूरी बना लिया, उससे दूरी बना लिया, टाइम नहीं है उसके पास, क्योंकि 12 बजे रात तक वो जागता है। उससे पहले नहीं सोचा, चाहे मेरा ही औलाद ना हो, मेरा ही ना हो, 12 बजे से पहले नहीं सोएगा। जब 12 बजे सोएगा तो 8 बजे उठेगा ही। सुबह में एक फरिश्ता चलता है, सुन ले, सुबह में जब अजान होती है तो एक फरिश्ता चलता है, हर के दरवाजे पर हाजिरी देता है, खटखटाता है। किसी को रोजी चाहिए तो सोया रहता है लड़का, सुन ले, सोया रहता है। कहा कि इसको जरूरत नहीं है तो सोया है। फिर दूसरे दरवाजे पर जाता है, अगर वो भी दरवाजा बंद है तो कहा ये भी तो सोया है। ऐसे ही पूरा दरवाजा घूम के चला जाता है, वो खाली हो जाता है। ये जान लिया पूरी अब नमाज की ताबेदारी। नमाज पढ़ें, नमाज से मांगे। नमाज अगर नहीं है तो दुनिया का देख ले सब क्या हो रहा है। ये मेरे अमाल का फर है, मेरे ईमान की कमजोरी है, जो कि मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं तो क्या होगा। अल्लाह से मांगो, दुनिया से मांग के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह से मांगेंगे, जो भी आपको मांगना है मांगे, हैरानी परेशानी से अल्लाह दूर रखे, कहेंगे तब ना। अल्लाह से मांगेंगे तब, अल्लाह से मांगते ही नहीं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। इसलिए आप पूरी हुक्म की ताबेदारी करें। हकानी दरूद शरीफ। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को मुर्शिद ने क्या कहा था, ऐ मौलाना इदरीस, कहा जी हजूर, बराकर से उधर तुम्हारा इलाका दे दिया मुर्शिद, बराकर से इधर मुर्शिद दे दिया। अब खाली 2 वजीफा दिया था मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को, 2 वजीफा। कहा कि एक अपने बाप को दे देना, एक अपनी माँ को दे देना, क्यों मिलेगा सीधा जन्नत। ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया। आज हम लोग क्या करते हैं,
कहता है मुर्शिद 4 चीज पर पूरा पूरी कामयाबी कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत अता फरमाएगा। 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजीफा, जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी के लिए दुआ करें। 4 चीज करेंगे, सूद से समझौता करेंगे तो नहीं बात बनेगी। कैसे हाफिज साहब बोलते थे, 1 लुकमा हराम खाइब और 1 लुकमा हलाल खाइब, अल्लाह के खोजब तो कैसे मिले? ना मिले, नहीं मिलेगा। पूरी मेहनत करें, क्योंकि दुनिया से जाना है, हर जानदार को मौत का मजा तो चखना ही है। यहाँ से जाएंगे तो क्या देंगे? अल्लाह ताला मांगेगा, ए बंदा मेरे लिए काला है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा चीज दिया, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, सहने के लिए, उड़ने के लिए। यहाँ से 5 घंटा में सऊदी पहुंचा दिया, 4 घंटा में नहीं, पैसा चाहिए, कितना आसान कर दिया। ये सब अल्लाह, आप तो आपका भी तो हक बनता है कि अल्लाह ताला के कुछ मैं इंतजाम करूं, अपनी कब्र का इंतजाम करूं। जाऊंगा तो वहाँ क्या देखेंगे? वहाँ जाएंगे कब्र में, जिस वक्त इंसान लेटा देगा आपको, अगर फजर की नमाज कजा है, खूब भयानक फरिश्ता आएगा, बड़े बड़े आँख होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, खूब भयानक चेहरा होगा। और जो है जब मुर्दा देखेगा तो कांप जाएगा। ये अल्लाह ये क्या है? कहा कि तुम्हारे अमाल का फल है, तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे सामने खड़ा है। एक फेंट मारेगा तो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धस जाएगा, फिर निकालेगा और फिर मारेगा। तब तक मारता रहेगा जब तक कि जोहर का वक्त न हो जाए। अगर जोहर का भी नमाज कजा है तब तक पूरी मजा आवत रही, मारत रही असर तक। ए अल्लाह ताला उस कब्र के आजाब से हमको बचा दे। दुआ करें हक्कानी दरूद से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद लिल आलमीन सवाइल सैयदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व तआला व औलिया मुहम्मद अजमईन कमा सल्लैता सल्लम व बारिक अला सैयदना इब्राहीम व अला सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम